Good morning to all my dear students. In the last lecture, we have started with our fourth chapter, that is business studies. Under it, we have studied some of the basic features, that is nature of business services, certain types of business services. Okay. Now we are going to start with different types of business services. Actual में कौन से business services होते हैं. Okay. So under it there are five business services you have to study in this chapter, that is banking service, insurance service, communication, warehousing and transportation. All those services we have to study. Under it, first is banking service. So what is banking service? If you all have well known about bank, okay, आपके आसपास in your surroundings, you all must have seen the variety of banks, that is commercial bank, Bank of Maharashtra, Central Bank of India, Bank of India, okay, then Allahabad Bank, ICICI Bank. All those are what? Bank. And that banks provides what? Banking service. What does it mean? They provide money, okay, they lend money to whom it is needed, okay, and at the same time to who has account in that particular bank, okay, and at the same time such bank accepts deposits also, okay. अगर आप कहीं जॉब करते हो, यू आर सैलराइड पर्सन, तो इतना सारा पैसा अगर महीने के एंड में ही आपको मिलता होगा, सो आप वो घर पर रखोगे? नो. व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ यू आर गोइंग टू सेव दैट मनी, अ बल्क अमाउंट ऑफ मनी, not in your home. Just because of some safety purpose, you are going to deposit that amount in the bank. Okay, so bank here accepts such deposit. आपके deposits, आपके savings को bank safeguard में रखती हैं, and at the same time in returns of that bank provides you interest amount also. Okay, so this is what banking service. Okay, see, in simple terms, a bank accepts money on deposit, रीपेएबल ऑन डिमांड. ओके, अगर बैंक ने आपके डिपॉजिट्स लिए हैं, सो वेन एवर यू विल डिमांड दैट पर्टिकुलर डिपॉजिट अमाउंट, सो बैंक इज गोइंग टू रीपे इट टू द कस्टमर and also earns a margin of profit by lending money. So now what does it mean? See, अगर बैंक किसी को लोन देती है, सो in case of that, in the exchange of that loan, bank will demand interest amount, and that interest amount is little bit higher. ओके, सपोज 9%, 10% इंटरेस्ट पे बैंक क्या करती है? कस्टमर को लोन देती है, एंड एट द सेम टाइम फ्रॉम द अनदर कस्टमर बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट, और वो डिपॉजिट पे बैंक कस्टमर्स को क्या देती है? इंटरेस्ट देती है, एंड सच इंटरेस्ट इज़ 4 to 5%. ओके, अभी तो वो 3% हो गया. सो व्हाट डज इट मीन? बैंक को अगर इंटरेस्ट देना हो कस्टमर को, सो बैंक प्रोवाइड 3% ऑफ इंटरेस्ट. और अगर बैंक को किसी से इंटरेस्ट अर्न करना हो, किसी से इंटरेस्ट लेना हो, टू रिसीव्ड, ओके, सो एट दैट मोमेंट बैंक विल अर्न हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो ये जो डिफरेंस है, बैंक का इंटरेस्ट आउटफ्लो इज़ 3% एंड इंटरेस्ट इनफ्लो इज़ 10 to 12%, समटाइम्स इट इज़ 18%. सो इन दोनों को जो डिफरेंस है, दैट थिंग इज़ मार्जिन ऑफ बैंक, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट. Okay, and on that basis only bank is going to run their business. Okay, so now in this chapter we are going to start with the banking study. Banking का तो एक बेसिक फंडा आपने क्लियर कर लिया. Okay, and there are other allied services which bank provides to their customer. What are those services? That thing also we are going to study in this topic. See, moving towards next, commercial bank. There are various types of bank. ओके, अंडर इट फर्स्ट इज़ व्हाट? कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक क्या होता है भाई? टोटली बिजनेस पर्पज से बनाया हुआ बैंक. ओके, सच बैंक इज़ फॉर कस्टमर्स. ओके, कस्टमर्स के लिए, कस्टमर के यूज़र इंटरफेस के लिए तैयार किया हुआ जो बैंक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक बोलते हैं. सी, कमर्शियल बैंक्स आर गवर्न एंड रेगुलेटेड बाय इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. ओके, दिस एक्ट को अंडरलाइन कर दो. ओके, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर वी हैव रिकॉग्नाइज्ड अवर कमर्शियल बैंक, और इंडियन गवर्नमेंट हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस बैंक. एंड अकॉर्डिंग टू इट, बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग इन्वेस्टमेंट. ओके, व्हाट डज इट मीन? आपसे मैं बैंक हूँ. Okay, so what does it mean? What I'm going to do is I'm going to accept your deposit, I'm going to accept your money
ओके तो मैंने आपके पास से जो पैसा लिया है वो मैं क्या करूँगी, बैंक के अंदर रखूँगी, और कल जाकर कोई और कस्टमर आता है, इफ़ अनदर कस्टमर विल कम to demand for loan, so what I am going to do is I am going to utilize that saving deposit, that accepted deposit to lend loan to somebody else. ओके और उसके ऊपर मैं क्या कमाऊंगी, इंटरेस्ट अर्न करूंगी. yes or no? See, there are two types of commercial bank. First is public sector bank and another is private sector bank. Public sector means what? The word public is always related with government or government services which is provided for general public, उसी को बोलते हैं पब्लिक सेक्टर. ओके और ये पब्लिक सेक्टर की जो बैंक्स होती है, इट इज़ द बैंक विच हैज़ अ कंट्रोल मैनेजमेंट इज़ इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट. ओके जिसका कंट्रोल मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है. सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर इन शॉर्ट गवर्नमेंट बैंक, and whereas private sector bank means what? Privatized bank. Okay, wherein the stakeholders are privatized. Okay, number of private investors are there who take initiative, who are the founders of such bank. जो कौन होते हैं, प्राइवेट पब्लिक होती है, या फिर कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं वो प्रोवाइड फंड्स फॉर द construction or for the formation of such bank. Such bank is what? Privatized bank. It is totally privatized और गवर्नमेंट का इस पर्टिकुलर बैंक के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता. whereas पब्लिक सेक्टर बैंक, इसका कंट्रोल किसके हाथ में रहता है, गवर्नमेंट के हाथ में रहता है. ओके सी, public sector banks are those in which the government has a major stake and they usually need to emphasize on a social objective than on profitability. Okay, this thing is also important. Why? Because it is public sector bank, it is made for public. So public के लिए जो फ़ायदेमंद है, okay, social society के लिए जो फ़ायदेमंद है, so this bank will एक्ट अकॉर्डिंग टू द सोशल लाइफ. ओके सोशल लाइफ में जो इजी जाना चाहिए पब्लिक को जीने के लिए, सो वैसे नॉर्म्स वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्रोवाइड करती है टू ऑल द पब्लिक और टू द कस्टमर्स हु आर हैविंग अकाउंट इन सच पब्लिक सेक्टर बैंक. ओके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर ओन, managed and controlled by private promoters and they are free to operate as per the market forces because they are completely free to regulate their bank as per their needs and wants, as per their rules and regulations. So there are number of public sector banks like SBI, Punjab National Bank, Central Bank, etc. Central Bank of India, Bank of India, Bank of Maharashtra, etc. And other private sector banks are like ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, HDFC Bank, Axis Bank, Jammu and Kashmir Bank. See, all those banks are what? Those are private sector bank. And whereas public sector banks जो होते हैं उसके भी मैंने examples बता दिए. Okay, now moving towards next, cooperative banks. So now what is cooperative? The word cooperative means what? To cooperate each other. So what does it mean? Certain number of people, needy people come together, they form one such type of bank in which that particular community or that person who will become member of that particular bank will get maximum facilities. Okay, in the form of loans, advances or deposits. Okay, see, these banks are governed by provision of State Cooperative Societies Act. इसको अंडरलाइन करके रखो. Okay, why it is covered under State Cooperative Societies Act? Because these banks are cooperative bank in nature and are formed to provide loan and advances to its members on easy terms. Okay, underline it, on easy terms. ओके बाकी बैंक में यहाँ उनको पैसा नहीं मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ लोन और एडवांसेस, बट ये बैंक में वो पर्टिकुलर अगर मेंबर होगा सो वो पर्सन को क्या मिलेगा, इजी बेसिस पे लोन मिलेगा विदाउट हैविंग मच मोर प्रोसीजर. कोऑपरेटिव बैंक्स आर गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. ओके अंडरलाइन दिस. So it is an important source of rural credit, that is agriculture financing in India. Okay, now India is agricultural country. Okay, so there are many people who are having their
डेली का जो कमाई होता है वो आर हैविंग देयर डेली इनकम विच इज़ ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. ओके, एंड एग्रीकल्चर से प्रॉपरली क्रॉप्स को आउटपुट मिलना चाहिए. उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा फंडिंग भी करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन देयर एग्रीकल्चरल लैंड. सो such type of funding they will get from cooperative bank, and that is why there are number of agricultural cooperative banks has been formed in our India. Okay, such banks are only and only working for farmers. Okay, so that bank is known as agriculture financing bank. Okay, now moving towards next is specialized bank. अभी specialized bank मतलब ये कुछ तो स्पेशल ही होना चाहिए, कुछ तो बड़ा काम करते होंगे, राइट और रॉन्ग. सी, specialized banks are foreign exchange banks, industrial banks, development banks, export import banks, catering and who are catering to specific needs of this unique quantity activities. These banks provides financial aid to industries, heavy turnkey projects and foreign trade. What does it mean? These banks are completely engaged in n number of activities which are not regular in our life. ओके, जो डेली के कस्टमर्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स के, वेदर इट इज़ प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक, वो सारे कस्टमर्स के डेली के ट्रांजेक्शन्स क्या हो सकते हैं, आइदर डिपॉजिटिंग मनी इनटू बैंक और एल्स withdrawing that money or else taking loan from that bank or else repayment of loan. Okay, इसके अलावा beyond that there are number of multinational companies are also situated in India और out of India. तो उनके जो businesses है which is regarding foreign exchange. Okay, what does it mean? Foreign exchange means what? Suppose मेरा दुबई में business है, okay, and from Dubai I am earning some source of income. ओके, आई एम अर्निंग सम इनकम एंड एट द सेम टाइम मेरा यूएस में भी एक बिजनेस है, सो देयर ऑल्सो आई एम अर्निंग सम इनकम. सो ये जो इनकम है डॉलर में मिल रहा है, तो वो इनकम मुझे इंडिया में आकर क्या करना पड़ेगा, रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो व्हाट सिंपली आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सबमिट बाय डॉलर मनी, डॉलर इनकम टू दैट पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड बैंक, एंड दैट बैंक इज गोइंग टू कन्वर्ट माई डॉलर इनकम इनटू रुपी इनकम, और मुझे वो एक्सचेंज मिल करके मिलेगा. दिस इज़ व्हाट फॉरेन एक्सचेंज. सपोज़ मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है किसी काम के सिलसिले में, मैं बड़ी व्यापारी हूँ इसलिए मुझे जाना पड़ता है आउट ऑफ इंडिया. सो मैं क्या करूँगी, मुझे टिकट निकालना होगा यूएस जाने का टिकट, एंड एट द सेम टाइम यूएस में रहना, खाना पीना, वहाँ का बिजनेस संभालना. सो फॉर दैट आई विल रिक्वायर सम मनी इन द डॉलर. ओके, सो मेरे रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करने का भी काम कौन करेगी, स्पेशलाइज्ड बैंक. Now industrial development bank, export import bank, okay, these are the activities which are running on international level. okay, ये इंटरनेशनल लेवल के जो बिजनेसेस होते हैं उनको संभालने का, उनके ट्रांजेक्शन्स को संभालने का काम स्पेशलाइज्ड बैंक करती है. ऑल ऑफ यू क्लियर? मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक के एकदम 2 लाइन्स ही दिया है, बट सेंट्रल बैंक के बारे में बताने जैसे बहुत कुछ है. एंड दिस बैंक इज़ वेल नोन अबाउट बैंकर्स बैंक. ओके, जितने भी सारे बैंक्स हैं इंडिया में, वेदर इट इज़ स्पेशलाइज्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, वॉट एवर द बैंक इज़ देयर इन आर इंडिया, वो सारे बैंक्स के बैंकिंग कल्चर को कंट्रोल करने के लिए, संभालने के लिए, वो इज़ देयर. देयर इज़ ओनली वन बैंक विच इज़ कॉल्ड एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड दैट बैंक इज़ नोन एज सेंट्रल बैंक. अपनी इंडिया की वो क्या है, सेंट्रल बैंक है, दैट इज़ कोर बैंक है, इम्पॉर्टेंट बैंक है. द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी country supervises, control and regulates the activities of all the commercial banks of that country. जितनी भी कमर्शियल बैंक्स होती है वो कमर्शियल बैंक्स के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना किसके हाथ में होता है, सेंट्रल बैंक के हाथ में. इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ गवर्नमेंट banker. It controls and coordinates currencies and credit policies of any country. What does it mean? In India, if there is inflation, if there is deflation, अगर मनी ज़्यादा हो गया है इंडियन मार्केट में, so by pumping method they can absorb that money from market
आर इंडियन मार्केट में अगर पैसा कम पड़ रहा है, सो बाय पंपिंग मेथड, सेम पंपिंग मेथड से ही वो क्या करने वाले हैं, मार्केट में पैसा ज़्यादा पुश करने वाले हैं. एंड सच पंपिंग मेथड इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन चेंजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, जिसको हम रेपो रेट भी बोलते हैं, ये हम बाद में सीखने वाले हैं. बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर द टाइम बीइंग दैट बाय चेंजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट सच बैंक कैन कंट्रोल द इकोनॉमी ऑफ आवर इंडिया. ओके, मनी रिलेटेड जो इकोनॉमी है उसको संभालने का काम कौन करती है, दिस सेंट्रल बैंक. सो ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ बैंकिंग, सर्टेन टाइप्स ऑफ बैंकिंग वी हैव स्टडीड. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. नाउ कमर्शियल बैंक, हाँ, जहाँ पर आपका खाता होगा, मेरा भी खाता होगा, सबका खाता होता है. सो कमर्शियल बैंक में भी आइदर पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक. सो ये कमर्शियल बैंक कैसी हो सकती है, आइदर ICICI भी हो सकती है या फिर बैंक ऑफ इंडिया भी हो सकती है. ओके, द मेन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट. ये तो सबसे पहले ही हो गया. बैंक क्या करती है, आप इतना सारा पैसा घर पे मत रखो, हमारी सेफ कस्टडी में भी रह सकता है. सो सच बैंक कैन कलेक्ट योर डिपॉजिट एंड स्टोर इट इन योर बैंक अकाउंट. ओके, सो कैसे, कौन सा बैंक अकाउंट चाहिए आपको, आइदर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट या फिक्स अकाउंट. ओके, इट इज़ completely the choice of customer. So based on that choice, the bank will provide you that particular account type of services. So this is what collection of deposit. Next is lending of funds. Okay, आपको अगर एक future dream home बनाना है आपको, okay, and if you have no that much of money right now, so what the bank is going to do is bank will lend you funds that is in the form of loan. अगर आप लोन के लिए अगर पूछताछ करोगे बैंक में, if you are fulfilling all the terms and conditions of that bank, so such bank is going to provide you loan. Okay, the commercial bank is to provide loans and advances out of the money received through deposits. जितने सारे लोगों से डिपॉजिट्स, करोड़ों लोगों से, लाखों लोगों से बैंक क्या करती है, डिपॉजिट्स जमा करती है. वो लोगों को डिपॉजिट एट अ टाइम चाहिए रहता है, नो. सो वो पैसे को बैंक कहाँ पर सर्कुलेट करती है, फॉर द लेंडिंग ऑफ फंड्स. सो दिस एडवांसेस कैन बी मेड इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एक्सेट्रा. ओके, ये कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट क्या है वो हम बाद में सीखेंगे. ओके, फॉर द टाइम बीइंग जस्ट समझ लो कि ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ loan facility is given, that is short term loan given to the customers. Next is check facility. The bank collects the check for the customer drawn on the bank. To collect check, banks have clearing houses. Okay, अभी मैं आपके कॉलेज में पढ़ाती हूँ. Okay, suppose if your college is going to pay me my salary in the form of check. Okay, कॉलेज ने क्या कर दिया, एक चेक मेरे नाम पे इशू कर दिया. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू इशू दैट चेक, आई एम गोइंग टू सबमिट दैट चेक इन माई बैंक. सो ऑन माई बिहाफ माई बैंक इज गोइंग टू कलेक्ट दैट चेक. वो चेक किसका है, मेरा है, बट वो चेक किसने बनाया है, कॉलेज ने बनाया है. ओके, सो कॉलेज की बैंक कौन सी है, कोई और बैंक है. सो किसी और बैंकर्स के चेक को भी माई बैंक इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट. ओके, सो द बैंक कलेक्ट्स चेक फॉर देयर कस्टमर्स ड्रॉन ऑन अदर बैंक. दूसरी बैंक के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ चेक भी मेरी बैंक क्या कर सकती है, एक्सेप्ट करेगी. और ये चेक के ऊपर जो अमाउंट दिया होता है, दैट माई बैंक इज़ गोइंग टू क्लियर दैट अमाउंट एंड माई बैंक इज़ गोइंग टू ट्रांसफर दैट अमाउंट इन माई बैंक अकाउंट. दिस इज ऑल्सो वन फंक्शन ऑफ बैंक. Next is agency function. In the agency function, here bank will act as an agent. How? On my behalf, on my order, bank is going to do some of the work for me on my behalf. Okay, on my order. See, bank pay insurance premium on behalf of their clients. मैंने बोला मेरा इंश्योरेंस मंथली ये महीने की ये तारीख को मेरा इंश्योरेंस कट जाना चाहिए. Okay, my policy number is this. In this account, we have to make payment of insurance premium from my account. So, as per the instructions given by the customer, bank will act such type of agency function.
बैंक ऑल्सो कलेक्ट डिविडेंड प्रीमियम, इंटरेस्ट, पेंशन एक्सेट्रा। ओके, अगर कोई रिटायर्ड पर्सन हो सो उसके बिहाफ में पेंशन रिसीव भी कौन करती है? बैंक ही करती है। बैंक विल इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ सम कंपनी, सो वो कंपनीज के शेयर्स के ऊपर इफ़ यू आर गेटिंग सम रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, सो योर बैंक इज़ गोइंग टू स्टोर, योर बैंक इज़ गोइंग टू कलेक्ट सच डिविडेंड। नेक्स्ट इज अलाइड सर्विसेज। अलाइड सर्विसेज और कुछ सर्विसेज हो सकती है। व्हाट आर दो सर्विसेज? दैट इज़ बिल पेमेंट्स, लॉकर फैसिलिटी एक्सेट्रा। यू नो आजकल लाइट बिल, टेलीफोन बिल भी जो होता है बैंक भी अपने बिहाफ पे क्या कर सकती है? पे ऑफ कर सकती है। इफ़ आई वांट टू मेक पेमेंट ऑफ रेंट, सो मेरा रेंट भी क्या हो जाएगा? मेरे जो घर मालिक है उनके खाते में सीधा बैंक क्या कर सकती है? ट्रांसफ़र कर सकती है। एंड एट द सेम टाइम लॉकर फैसिलिटी, इफ़ आई हैव नंबर ऑफ गोल्ड ज्वेलरी विच आई कैन नॉट केप्ट विथ माई सेल्फ, ओके, क्योंकि आजकल इतना रिस्की हो गया है, घर में भी चोरी हो सकती है। सो जस्ट टू रिड्यूस सच टाइप ऑफ रिस्क, व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन स्टोर और आई कैन कीप इन अ सेफ गार्ड ऑफ बैंक all those jewelries. Okay, so this is what allied services given by bank. Moving towards next is e-banking. So now what is e-banking? जो काम जस्ट सिंपल वर्ड में मैं बताती हूँ, वॉट एवर द वर्क और वॉट एवर द मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन यू वॉन्ट टू डू विथ दैट बैंक, you are not supposed to go, you are not expected to go in the bank. Okay, you only have to sit at your home. Okay, and at the same time bank will provide you e-banking facility. Okay, by using that e-banking facility, what you can do is you can simply input some of your details and you can simply go through with the transaction whatever you want to do. Okay, with your bank account. What does it mean? Suppose मुझे घर बैठे कुछ पैसा निकालना हो, सो मैं क्या कर सकती हूँ? Yes, of course. बट मुझे इन हैंड मनी मिलेगा नहीं। सपोज़ किसी दूसरे के खाते में पैसा पड़ा है जो मुझे मेरे खाते में लेके आना है, दैट इज़ व्हाट ई ट्रांसफ़र करना हो, सो आई कैन डू दैट. Okay, I can make e-payment also. I can see my passbook also. Okay, मेरे पासबुक में बैंक में कितना पैसा जमा है, that thing I can do. Okay, I can do e-setting also कि आज से अभी से मेरी बैंक ने कौन से एजेंसी फंक्शंस मेरे लिए वर्कआउट करना शुरू करना चाहिए मेरे बिहाफ में. अगर सपोज़ मैं चाहती हूँ कि बैंक शुड मेक द पेमेंट ऑफ electricity bill, bank should make the payment of rent, etc. So all those settings I can done by sitting at my home and by using such e-banking services. This type of e-banking services is offered by bank for 24/7 for 365 days. Some of the nominal charges maybe bank will take from their customers. Okay, see, internet banking means any user with PC or and a browser can get connected to the bank's website to perform any of the virtual banking function and avail of any of the bank's service. Okay, बैंक की जो कोई भी एजेंसी सर्विस हो, अलाइड सर्विस हो, you can also take that service by sitting at your home. There are various benefits of e-banking provided to customer which are, सपोज़ आप पॉकेट भूल गए लेकिन आपके पास क्या है? एटीएम है. आप पॉकेट भूल गए बट यू हैव योर क्रेडिट कार्ड, यू कैन सिंपली मेक पेमेंट ऑन द स्पॉट. ओके, आप बाज़ार में हो, कहीं पर भी हो, यू कैन ईजिली मेक पेमेंट. कस्टमर्स कैन मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफिस और हाउस और ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक. व्हाट डज इट मीन? बैंक बहुत दूर है, आपका घर कहीं और या बैंक कहीं और, सो इतना रास्ता कौन चल के जाएगा? बेटर वे, वी कैन सिट और वी कैन सिट इन आवर होम एंड वी कैन एडजस्ट विथ ऑल आवर बैंकिंग ट्रांजेक्शन बाय वे ऑफ हैविंग ई बैंकिंग. सो द बैंक्स ऑल्सो स्टैंड टू गेन बाय बैंकिंग. ओके, आप क्या कर सकते हो? बैंक्स को एक्चुअल में बाय कर सकते हो और वर्चुअल बैंक को एक्सेप्ट कर सकते हो. See, e-banking provides competitive advantage to the bank and e-banking provides unlimited network to the bank.
ऑल ऑफ यू क्लियर। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको बैंक अकाउंट भी ओपन करना हो, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू फिल अप योर फॉर्म, यू हैव टू सबमिट सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ओके, लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो कुछ भी होता है, ओके। सो ऑल KYC प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो to open a bank account. But by having e-banking service you can, आप घर बैठे बैठे क्या कर सकते हो, अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। All of you clear? Moving towards next is bank accounts. There are number of types of bank account. They have given current account, saving account, recurring deposit account and fixed deposit account. क्या है देख लेते हैं। Now see what is current account. एक स्टोरी बताती हूँ मैं आपको, ओके। सपोज आई एम अ इन्वेस्टर, सॉरी नॉट इन्वेस्टर, आई एम बिजनेसमैन। मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे कभी भी ज़्यादा पैसा लगता है, ओके। आज मेरे अकाउंट में 10,000 पड़ा है। टुडे इन माई अकाउंट देर इज़ 10,000 रुपीज़, बट टुडे इटसेल्फ आई नीड अ कैश ऑफ ₹50,000। तो अब मैं क्या करूँ, इन माई बैंक देर इज़ ओनली 10,000 रुपीज़ लेफ्ट। सो इफ़ आई एम हैविंग करंट अकाउंट then there is no any tension, I can easily withdraw the rest of surplus 40,000 रुपीज़। मतलब 10,000 तो है ऑलरेडी अकाउंट में, लेकिन उससे अलावा मैं 40,000 और भी एक्स्ट्रा क्या कर सकती हूँ, विड्रॉ कर सकती हूँ फ्रॉम माई बैंक। वाई? बिकॉज आई एम हैविंग अकाउंट ऑफ दिस टाइप, एंड ये टाइप क्या है, करंट अकाउंट, ओके। सो यूजुअली सच करंट अकाउंट होल्डर्स आर businessmen. See, current account is mainly for business persons, firm, companies, public enterprise, etc. and are never used for the purpose of investment or savings. Okay, मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे बहुत सारे पैसे कभी ना कभी लगते हैं, बहुत सारा पैसा मेरे हाथ में आता है, तो मैं कहाँ डालूँगी, वेयर आई एम गोइंग टू डिपॉजिट इट इन माई अकाउंट, बट विच अकाउंट, इन करंट अकाउंट। और कभी कभी अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है उससे डबल का पैसा भी मुझे निकालना पड़ता है। सो दिस फैसिलिटी, वेयर आई कैन अवेल दिस फैसिलिटी, इन करंट अकाउंट ओनली। दिस डिपॉजिट्स आर मोस्ट लिक्विड, लिक्विड मतलब क्या, ईजीली कैश अवेलेबल करने वाला डिपॉजिट है ये। एंड देर आर नो लिमिट्स फॉर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स और द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ डे। दिन में आप 10 बार जाओ, 20 बार जाओ, कितनी बार भी जाओ, देर इज़ नो एनी टेंशन, बिकॉज यू आर करंट अकाउंट होल्डर। और कितनी भी बार आप पैसा निकाल सकते हो और कितनी भी बार पैसा डाल सकते हो, ओके। While there is no interest paid on the amount held in the account, underline this, there is no interest paid, bank is not going to pay you interest. अगर आप बोलोगे नहीं मैंने कल तो मेरे अकाउंट में 10,000 डाला था, एक महीने तक मैंने नहीं निकाला, आई वॉन्ट इंटरेस्ट ऑफ दैट 10,000 रुपीज़, आपको मिलेगा नो, ओके। सर्टेन सर्विस चार्जेस ऑन सच अकाउंट आर देयर। The current account do not have any fixed maturity as these are on a continuous basis account, okay। इसको कुछ maturity period नहीं होता। This account is ongoing account, continuous nature वाला account है, okay। You can simply do number of transactions in that account and at the same time जो overdraft facility है, वॉट डज इट मीन, मेरे अकाउंट में 10,000 पड़ा है बट आई कैन विड्रॉ 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, कितना भी चाहे निकाल सकती हूँ, ओके, बट अप टू दैट सर्टेन लिमिट ओनली, ओके। सो दिस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन इन दैट करंट अकाउंट ओनली, ओके। नेक्स्ट इज सेविंग अकाउंट। दिस इज़ वेरी सिंपल अकाउंट जो कि सबका होता है, मेरा भी है, आपका भी हो सकता है। दैट इज़ वॉट सेविंग अकाउंट। Saving account is mean for saving purposes. Any individual either single or jointly can open saving account. Okay, आप आपके पापा मम्मी के साथ भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हो, आप खुद का अकेले का भी ओपन कर सकते हो। Most of the salaried person, pensioners and students use saving account. The advantage of having saving account is banks pay interest for saving, okay। अगर आपकी पॉकेट मनी आपको जो पापा देते होंगे, so slowly and steadily you can also deposit your pocket money in your bank. अगर आपकी पॉकेट मनी ज़्यादा खर्चा नहीं होती है, so you can also save it by having your saving account and at the same time in on that savings your bank
can give you, your bank is going to pay you interest also. So how much is the interest? Usually 4 to 6% per annum. So now ये तो पुराने रेट हो गए हैं. राइट नाउ बैंक इज गोइंग टू गिव यू ओनली 3.5% ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. पूरे साल का आपको 3.5% इंटरेस्ट ही मिलेगा. ओके, विच इज़ वेरी मच लेस. There is no restrictions on the number of amount of deposits, but the withdrawals are subjected to certain restrictions. Okay, what does it mean? आप monthly 5 times या 4 times या 5 times ही you can withdraw from your account, but whenever you require or whenever you want you can deposit money in your bank. Okay, but withdraw कैसे कर सकते हो? For a certain number of time only. Okay, some banks recommend to maintain a minimum amount to keep it functioning. What does it mean? Suppose see, अगर आप पब्लिक बैंक में आपका खाता ओपन करते हो, फॉर एग्जाम्पल दैट पब्लिक बैंक इज गवर्नमेंट बैंक, सो यू रिक्वायर ओनली 500 to 1000 रुपी अमाउंट टू ओपन अ बैंक. बट अभी गवर्नमेंट ने वो रूल भी निकाल दिया है, आप ज़ीरो अमाउंट से भी आपका सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो. बट इफ़ यू गो फॉर प्राइवेट बैंक, so private bank requires 5,000, some banks requires 10,000 minimum amount to be there in your account. Okay, or minimum account to be there to open your bank saving bank account. Okay, for privatized bank there is some requirement of minimum holding or minimum depositing of amount. All of you clear? So this is what saving account. There are 2 types of accounts are remaining. This 2 types we are going to continue in the next lecture. Okay, till then you all just revise with all the topics which we have concluded today. Okay, here we are. Thank you for the day.